ओके हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड डबल डिफरेंशिएशन नाउ व्हेन आई इंट्रोड्यूस डबल डिफरेंशिएशन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ओह व्हिच इज कमिंग ऑन मी so when I introduce double differentiation I will also introduce the fact you can differentiate n number of times any number of times now it can be yeah. So let's just talk about a function. Even though differentiability is in your course exactly, but you should understand that some functions are not differentiable after a point. Not differentiable after a point. So if a function is differentiable, no matter how many times you differentiate, then you can differentiate it a number of times. For example, polynomials, if you think about polynomials, what happens is let's just write a polynomial of degree 4. So let's say we are talking about higher order. Now, this is the topic, higher order derivatives. Now, when I talk about higher order derivatives, I am not just talking about second order. I am talking about third, fourth, fifth, sixth, jitne hi possible. Let's just take an example. Let's just say we have a polynomial f of x is equals to xu plus 2x square plus 3x plus 2. Now, if I write f dash x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या हो जाएगा 3x square plus 2 into 2 4x plus 3. Now we notice कि this is still differentiable, so we can also calculate double differentiation of it, second order derivative, which is 6x plus 4. This is still differentiable. I can also f triple dash x, which is equals to 6, and this is still differentiable, which makes this f1, 2, 3, 4 times x, which is 0. Now I can write any differentiation further than this have no meaning to it, because eventually it is 0, so it will be 0, 0, 0, 0. It does not make any sense. But we understand कि differentiable, अगर हम इस function की बात करें, original जो function था ये भी differentiable था, इसके next जो function आए ये भी differentiable है, इसके next जो function आए ये भी, for example ये cubic था तब भी differentiable throughout है, ये quadratic है तब भी differentiable throughout है, इसके बाद ये लीनियर है ये भी differentiable throughout है, ये constant है ये भी differentiable throughout है. तो this polynomial, that's why is a very good example when you want to figure out कि higher order derivatives क्या है, because you will always end up getting a higher order derivative of a polynomial because they are differentiable in that. They are differentiable in that. Now let's just understand the meaning of differentiable. When I talk about a particular polynomial, let's just make a particular polynomial and understand कि उसके single order and double order differentiations क्या value देते हैं. Let's talk about the differentiation of a particular polynomial. Let's say y is equals to x minus 2 whole square. Let's say we have y is equals to x minus 2 whole square. Now, can you tell me ki how would this look like? Think about it. You might remember कि हमने last class में कहा था अगर ये y minus 0 है is equals to x minus 2 है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 2. मतलब मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ काइंड ऑफ लाइक वर्टेक्स इसमें निकाल रहा हूँ मैं. तो इसमें अगर हम पॉइंट ये प्लॉट करें which is 2,0, 2,0 कहाँ आएगा x2 y0 2,0, and this is a parabola which is upward parabola, x squared है, so this will be something like this. ठीक है, something like this. This is something we did in last class. You might or might not remember it, but it's okay. So ये polynomial है हमारे पास. Now if I do the single order differentiation of it, अगर मैं dy by dx निकालूं, पहले इसको expand कर लेते हैं फिर निकालते हैं, तो y is equals to x squared plus 4 minus 4x. यही आया. Now what is dy by dx? dy by dx is equals to 2x minus 4. Correct? Now what is the meaning of this 2x minus 4? This means अगर मैं कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करूं इस पे, लेट्स से मैं ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूं जहां पे x की वैल्यू है -2. अगर मुझे -2 पे इसकी स्लोप देखनी है, अगर मुझे -2 पे इसकी स्लोप देखनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा dy by dx at -2 निकाल दूंगा, which is 2 into -2 minus 4, which is equal to -8. So we have -4 minus 4, which is -8. तो इसकी स्लोप ऐसे निकलेंगी. तो ये जब हम जनरल डिफरेंशिएशन करते हैं ना,
तो जो वैल्यूज आती है वो बेसिकली प्लग इन करना चाहती है, वो बेसिकली वैल्यूज डलवाना चाहती है आपसे कि एक्स की जो वैल्यू होगी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे उसके हिसाब से आएगी। नाउ यू वुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट यू वर आस्किंग अबाउट टी, कि उसमें बेसिकली आपको टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई निकालना, तो एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट करना, डिफरेंशिएशन करके आप वैल्यू डालोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन एक्स और वाई हो गया और उसमें बेसिकली हम पता डी बाय डी एक्स करके एक्स की डिफरेंशिएशन करके उसको रेसिप्रोकल कर देते। See, the thing is, let's say you have something like this. Let's say you have x is equals to t squared plus 3. Okay, let's say you have x is equals to t squared plus 3. Let's say you have y is equals to 2x plus x cube. Okay, and now I ask you the question, what is the value of dy by dx at x, at t is equals to 4. Let's say this is our question. Now, first of all, let's calculate dy by dx normally. dy by dx क्या आएगा? dy by dx is equals to 2 into 2 plus 3x squared. Correct? This is the value. Now the thing is कि we have to decide कि हम x की क्या value डालें. Now the value of x is dependent on t. So यहाँ पे x हम निकालेंगे is equals to 4 square plus 3, which is equals to 16 plus 3, which is 19. Now is when we substitute this value. 2 plus 3 into 90 square. I mean, no, it does not have values. It was like constants. They were constants. तो हमें तो सिर्फ y को करना था ना, डिफरेंशिएट y को ही करना है, लेकिन डिफरेंशिएशन की वैल्यू एक पॉइंट पे पूछने का मतलब होता है मतलब कि डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यू आए, वही मैं कह रहा हूँ. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन सच क्वेश्चंस. यू that's true again, but just आपको t की वैल्यू इवेंचुअली डालनी है. That's true. So and this does not mean कि आपको इस पार्ट को डिफरेंशिएट करना है. There is no point of it. उन्होंने कभी इसे डिफरेंशिएट करने बोला ही नहीं. No, there is no point in it. मतलब why would you differentiate it? आपको वैल्यू तो निकालनी है इस पे. अच्छा, anyways, अब back to our example. So basically dy by dx यहाँ पे क्या कह रहा है? -8 है, स्लोप की वैल्यूज दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. Let's understand कि d square y by dx square क्या निकालें. So dy by dx हमारे पास आ गया है. अगर हम d square y by dx square निकालें, मीनिंग हम इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर दे, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है. नाउ अगर मैं dy by dx को 0 से इक्वेट करता हूं, अगर मैं dy by dx को 0 से इक्वेट करता हूं, 0 से इक्वेट करने का मतलब समझते हो? ऐसा क्या पॉइंट है जिस पॉइंट पे स्लोप 0 हो गई? मतलब अगर मेरा ग्राफ राइजिंग या फॉलिंग या कुछ भी है, तो मैं वो पॉइंट निकालना चाहता हूं जिस पॉइंट पे क्या हो गई, मेरे इस इक्वेशन की वैल्यू, मेरे इस ग्राफ की वैल्यू क्या हो गई, मतलब जो जिस पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा होगा तभी 0 ही होगी ना. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब स्लोप चेंज हो रहा होगा तभी. अब देखो, अगर मैं यहाँ पे, अब मैंने निकाला यहाँ पे dy by dx क्या है? 0 है. ठीक है, तो यहाँ से क्या आया? 2x minus 4 शुड बी 0. तो 2x क्या आना चाहिए? 2 x आ गया, x आ गया 2. सो अगर x 2 है, नाउ द मीनिंग ऑफ x इक्वल टू 2 कि जो x इक्वल टू 2 है, इस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू या तो मिनिमम है या मैक्सिमम. मतलब स्लोप 0 है, मतलब या तो वो मिनिमम पॉइंट है या फिर वो क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है. तभी होगा ना स्लोप 0. अगर मैं कोई ग्राफ बनाता हूं, अगर वो ऐसा ग्राफ है, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है? मैक्सिमम है. अगर वो ऐसा ग्राफ है तो ये पॉइंट क्या है? मिनिमम है. तो ये मुझे ये नहीं बता रहा स्लोप 0 करने से मुझे क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये कि वो दोनों में से कोई एक चीज है, एक्सट्रीम पॉइंट है वो, या तो मैक्सिमम होगा या वो मिनिमम होगा. लेकिन वो क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम, ये डबल डिफरेंशिएशन बता रहा है. तो जब हम डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब जो पॉइंट निकाला था हमने dy by dx जहां पे 0 था, दैट इज मिनिमम. दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज मिनिमम. सर इतने डिटेल में हमारे कोर्स में है क्या? हाँ, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप करोगे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना, वो यही होता है. बेसिकली आप ये डिसाइड करते हो, पहले सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हो, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव से डिसाइड करते हो कि जो आपने सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, वो जो पॉइंट आ रहा है इक्वल टू 0 करने के बाद, वो मिनिमम था या मैक्सिमम था. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या था? मिनिमम था. और ग्राफ में देख सकते हो ये क्या है? मिनिमम है. इनफैक्ट ये मिनिमम है. तो डबल डिफरेंशिएशन ये कर रहा है आपके साथ. पता कैसे चल रहा है ये मिनिमम, मतलब ये तो इस ग्राफ के लिए मिनिमम इस ग्राफ के लिए मिनिमम, मतलब हर ग्राफ के लिए अलग अलग आएगी ना वैल्यू. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक अ क्यूब. क्या मैंने क्या लिया? क्वाड्रेटिक लिया. क्वाड्रेटिक का फायदा क्या हुआ? क्वाड्रेटिक लेने की वजह से मुझे पता है मिनिमम पॉइंट क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक. या तो मैक्सिमम पॉइंट एक आएगा या मिनिमम पॉइंट एक आएगा, एक से ज्यादा नहीं आता.
लेकिन क्यूबिक में ऐसा नहीं है। क्यूबिक में मैक्सिमम भी आएगा, क्यूबिक में मिनिमम भी आएगा, है ना। क्यूबिक में मैक्सिमम भी आएगा, क्यूबिक में मिनिमम भी आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। क्यूबिक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यही वाला क्यूबिक उठा लेते हैं जो हमने करा था, इस क्यूबिक की बात करते हैं। सो अगर इस क्यूबिक में नहीं, हाँ बट सॉरी, एफ डिफरेंशिएट कर रखा है इसलिए लिया था। लेट्स से मैं ये क्यूबिक दे रखा है, ठीक है यार। लेट्स टेक अ क्यूबिक जो कि थोड़ा अच्छी वैल्यू, हाँ मतलब थोड़ी ना अच्छी वैल्यू है। लेट्स से अच्छी वैल्यू तो रुक जा, आसान दिखेगा नहीं वो, लेकिन हाँ। Let's say you have, I want the dy by dx to be equal to, let's say I want dy by dx to be equal to x minus 2 into x minus 3. बताऊंगा अभी समझाऊंगा। Let's say I want dy by, हाँ तो डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक है तभी तो फंक्शन क्यूबिक होगा। डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक है तो फंक्शन क्या होगा? ओके ओके ओके, समझे? मैं ओरिजिनल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनीवेज दिस इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन हो सकती है। दिस कैन बी द डिफरेंशिएशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस है। हाँ मैं जो कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का प्रोसेस, बस तुम लॉजिक से करो। सो तुम्हें करना नहीं है, तुम्हें नहीं करना, डोंट वरी अभी तुम बस। तो बेसिकली लेट्स जस्ट से, दिमाग खराब हो जाएगा वैसे भी कुछ। नहीं 3 नहीं, 1/3 x क्यूब, ठीक है 1/3 x क्यूब माइनस, I want this to be 5. So if I want this to be 5, I'll just take 5/2 x square. ठीक है? कोई नहीं, अभी आप कर हाँ, रहे हो, अभी समझना है, ठीक है। अभी समझना है। ये प्लस 6x. This is our y. This is our y. तो dy by dx क्या आएगा? देखो 3x squared by 3 minus 5 into 2/2x अब कर लेंगे plus 6. So this is equals to x squared minus 5x plus 6. Now the thing is, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि dy by dx किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के, वो निकालने के लिए कि पॉइंट ऑफ मेरा मैक्सिमम या मिनिमम है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x minus 3, x common, minus 2 common, x minus 3, so we have x minus 2 into, x minus 3. ठीक है। अब इक्वल टू 0, नाउ दिस मींस इट हैज 2, नॉट 1 बट 2 पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। तो एक क्या है, एक dy by dx एट x इक्वल टू 2 है और एक x इक्वल टू 3 है। आप क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करते हैं, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। नोटिस करो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो उससे वैल्यू क्या आती है बताओ? किसकी? x minus 2 into x minus 3 की नहीं। डिफरेंशिएशन करनी है बाबू। अब इसकी करनी है ना, इसको डिफरेंशिएट, ये आया था ना आपका dy by dx, dy by dx ये है, तो अब मैं डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो वी हैव 2x minus 5. नाउ इसकी वैल्यू एट x इक्वल टू 2 क्या आएगी? At x equal to 2, this is 2 into 2 minus 5, which is minus 1, meaning ये point क्या होगा? Maximum negative आई है। And at x equal to 3 ये क्या आएगा? 2 into 3 minus 5, which is 1, which is mean this will be. So what you, क्या अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, मिनिमम अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। Why we will do when we do application parameter? आज दोनों पॉजिटिव नहीं आ सकते, क्यूबिक ऐसे नहीं आ सकते। फिर मीनिंग क्या, अगर दोनों नेगेटिव आते तो 2 पॉइंट ऑफ मिनिमम होते। समझा? हाँ ऐसा भी हो सकता है। ये देखो समझा रहा हूँ। लेट्स से अभी जो आया हमारे पास क्या है, क्यूबिक है। क्यूबिक का ग्राफ कैसा होता है? क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होता है, करेक्ट। अभी हमारे पास 2 पॉइंट्स आए, वो 2 पॉइंट्स कौन से आए? ये पॉइंट आया है और ये पॉइंट आया है, ठीक है। अच्छा मैं ढंग से बनाता हूँ कि तुम्हें थोड़ा भी डाउट ना रहे। लेट्स से दिस इज द ग्राफ वी गॉट। तो एक पॉइंट क्या था, एक था ये वाला पॉइंट था एट x इक्वल टू 2 और एक था एट x इक्वल टू 3। नोटिस करो ये ग्राफ क्यूबिक का है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये है ग्राफ ऑफ मेरा y। दिस ग्राफ हैज मैक्सिमम एट 2, देखो मैक्सिमम एट 2, मिनिमम एट 3। So this is the graph. क्यूबिक भी है, वही क्यूबिक प्लॉट करा है मैंने जो क्यूबिक हमने देखा था। तो ये क्यूबिक, तो दिस इज द रेलेवेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द डबल डिफरेंशिएशंस। बट क्या कहते हैं, अगर हम जैसे कि नेगेटिव साइड पर जाए तो मिनिमम तो और ज्यादा मिल सकता है हमें, और अगर
हम पॉजिटिव साइड That is why it is known as eventually we'll study. These are all the things जो भी हम डिस्कस करेंगे, but application of derivatives में इसका मैक्सिमम और लाइक जो मिनिमम है वो ग्लोबल मैक्सिमम नहीं है, वो ग्लोबल मिनिमम भी है। ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरे, जैसे पुराना वाला जो हमने देखा था ना, वो ग्लोबल मिनिमम था कि पूरे फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू। ये क्या है पता है? लोकल मैक्सिमम, कि थोड़ी सी जो दूर में, थोड़ी सी दूर में ये मैक्सिमम और मिनिमम। क्या अब कुछ नहीं करना, यही करना है, यही तक, यहीं तक है। ग्लोबल नहीं, द थिंग इज की ग्लोबल निकालना और लोकल निकालने में दोनों में अंतर होता है, बट द थिंग इज तुम इवेंचुअली कर वही रहे हो। This would be a lot, make lot more sense once we have practiced a lot of differentiation and eventually we come to application of derivatives. Because अभी आपको मैंने एक simple polynomial function दिया है, तो polynomial function में imagine करना ना कि सर ऐसा कौन सा cubic होगा जिसमें local maximum की जगह global maximum होगा, तो ऐसा कोई cubic होता ही नहीं। That's why you are not able to understand it through this example, because there is no cubic in which you have a local maximum or a local minimum. वो minus infinity से infinity तक जा रहा है, तो उसका कोई maximum और minimum है ही नहीं anyway. जिसे कहते हैं global. बट इसका ग्लोबल मिनिमम था, तो ग्लोबल मिनिमम होना भी तो चाहिए, तब तो निकालेंगे। ये भी तो क्वेश्चन है ना कि ग्लोबल मिनिमम है भी या नहीं है, तब तो निकालेंगे। बट लोकल, हाँ है, लोकल है। कैसा पता है? डिस्कस, we'll discuss it, we'll discuss. The thing is, this is AOD. मेरे को आपको सिर्फ और सिर्फ AOD का ये इंट्रोडक्शन इसलिए देना था कि आपको समझ आए कि हम डबल डिफरेंशिएट इतनी बार कर क्यों रहे हैं, और दूसरी बात डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद भी हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, ये आपको समझ आए। क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में करते हैं, उसमें हम ऑलमोस्ट किसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे होते, एंड हम जनरली किसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे होते, which does not mean कि we eventually do not have to, or it does not make sense to substitute values. It's just that कि dy by ds की वैल्यू अगर मुझे 2x minus 4 मिलती है, तो वो बता रहा है डिपेंडिंग ऑन x क्या है, वो अलग अलग वैल्यूज ऑफ x पे अलग अलग स्लोप्स दे देगा। एंड दैट इज हाउ पावरफुल डिफरेंशिएशन इज, कि आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से उसने एक जनरल टर्म दे दी फॉर स्लोप। वैसे हमें हर पॉइंट पर स्लोप निकालना पड़ता है, लेकिन इसने क्या करा, इसने एक जनरल टर्म फॉर स्लोप दे दी कि आपको कोई भी पॉइंट पे निकालना हो ना पूरे फंक्शन के लिए, तो ये रही आपकी जनरल टर्म। नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड द फंक्शन इज, as long as it is differentiable, we can give its general value of slope. We can have a general value of slope. If it is not differentiable, then हमारी पूरी की पूरी कैलकुलस वर्क करनी बंद हो जाती है उसपे, मतलब तो हमारी कैलकुलस ही रुक जाती है। अगर डिफरेंट, तो हमारी कैलकुलस स्टार्ट ही तब होती है जब हमारे पास डिफरेंशिएबल थिंग्स हो, वरना हमारी कैलकुलस रुक जाती है। तो और क्या ऐसा होगा? डेफिनेटली। इनफैक्ट मेरी आधी से ज्यादा इकोनॉमिक्स में 50% ऑफ माय इकोनॉमिक्स में वो डिफरेंशिएबिलिटी रोक देते हैं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि भाई हर बंदा डिफरेंशिएट करके आंसर ले आए। क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है? प्रैक्टिस कर ली, सीख गई, फिर क्या करना है? दिमाग थोड़ी लगाना है, बस एक रूल लगाते जाना है, तो वो नहीं करते ऐसे। That's the Anyways, now let's come back to our topic of double differentiation, and अभी हमने polynomial की देखी। Let's talk about, you will write this example, and उसके साथ एक क्लास में, चलो पहले लिख लो फिर क्वेश्चन फिर लिख। let's solve this important वाला बार बोले। dy by dx is equals to p constant, जरूरत नहीं है, p constant है, so we have p आ गया e to the power ax की differentiation e to the power ax into a plus q into we have e to the power bx into b. Okay, dy by dx की वैल्यू आ गई। Let's differentiate again, so we have t square by dx square, again p बाहर ही रहेगा, we have p into a into e to the power ax into differentiation of e to the power ax is again into a, आप दो ही बात तो करना है, e to the power into b e to the power bx into again b, so this becomes p a square e to the power ax plus q b square e to the power bx. Now let's just substitute value, p a square e to the power ax in plus q b square e to the power bx minus a plus b into p e ax into a plus q e bx into b plus a into b into y is p e ax plus q e bx. If we solve this, we get, मतलब eventually कट लेगा,
तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता नहीं है। हाँ मतलब मैंने तो आज के पेपर में डायरेक्टली ये तो मैंने सॉल्व नहीं किया। q to the power b square into e to the power bx माइनस पहले ए से सब मल्टीप्लाई होगा, सो वी हैव p into a square e to the power ax minus q into ab e to the power bx minus p into e to the power ax into again ab and then minus q into b square e to the power bx plus ab p to the power eax plus ab q to the power q into e to the power bx. Now we have qb square, you have qb square, you have pa square, you have pa square, you have abx qabx pabx pabx. So this is 0. आंसर देखो, लेट्स जस्ट थिंक दिस इज दिस होल थिंग लॉग के अंदर जो पूरा है ना, आई जस्ट यूज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, आई जस्ट यूज सब्स्टिट्यूशन जस्ट सो यू कैन सॉल्व इट अ लॉट इजियर. सो आई यूज, इसे क्या ले ले, टी ले लेते हैं. टी इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पता है डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा. डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू चेन रूल लगाएंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2x, 2 और 2 कट गए, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ऊपर में क्या आया, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये दोनों कट गए, इसका फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये तो कर लिया हमने. अब ये क्या आ गया, y इक्वल टू टी स्क्वायर, ये पूरा टी लिया है हमने, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी बाय, क्योंकि t में थोड़ी है इक्वेशन, हमें तो x में निकालनी है, तो बेसिकली 2 इंटू टी क्या था, t था log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स क्या आया, 1 बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये आंसर आएगा, ठीक है, यहाँ आ गया. अब हमें इसे डबल डिफरेंशिएट, क्या y dy बाई डी एक्स है, y क्यों आएगा. नाउ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना. नाउ फॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दीज आर अ सीरीज ऑफ टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड टुगेदर, राइट. This function is multiplied with this function, which means I have to use product rule. So 2 बाहर रहने देते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं, उसके x टू द पावर -2 कर दूंगा, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर. जब 1 अपॉन समथिंग हो ना, क्वोशिएंट रूल लगाना इज लाइक टू tedious. हाँ, उसको ऊपर ले जाना, इसको ऐसे लिख लेना, दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर -1/2. ऐसे करो ना, क्यों मेहनत कर रहे हो. सो नाउ दिस इज, पहले हम log को कांस्टेंट रखते हैं, log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हनी पिलेट, इसे कांस्टेंट रखते हैं इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, मतलब या फिर सिंपली डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -1/2. ओके, नाउ प्लस, अब इसको कांस्टेंट रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर -1/2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, you have a log x plus root x square plus a square. ठीक है. नाउ ये हो गया, ठीक है. नाउ अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर दे, डिफरेंशिएट करने से, मतलब मैंने अभी स्टेप लिखा था, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, इनटू -1/2 इंटू रूट मतलब नीचे नीचे लिखता हूँ, 3/2 आएगी पावर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 इंटू 2x, ठीक है, प्लस ये तो सेम ही रहा, 1 अपॉन लिख देता हूँ, 1 अपॉन इसे भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2 इंटू, इसकी डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये हम कर चुके हैं. हाँ, देख रहा हूँ, ये आ गया.
नाउ यहाँ पे 2 और 2 कट गए, ओके, अब दिस इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू या डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आया प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, माइनस, अच्छा माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा 2, तो ये पूरा माइनस में, और इनटू क्या है यहाँ पे 2। नाउ वी जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, उसके साथ क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इस पूरे के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्टली कैंसिल होगी। तो हाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो ये क्या आया, -2 log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ओके, ये आ गया है क्या, प्लस, हाँ 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई आ रहा था पूरे से, तो प्लस 2, एंड देन यहाँ पे देन नेक्स्ट टर्म क्या है, x dy by dx, तो dy by dx क्या था, dy by dx तो ये था, तो इंटू एक्स कर देते हैं, तो x dy by dx आया, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, एक्स डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स आएगा, ये पूरी डिफरेंशिएशन इंटू एक्स इंटू 2 log एक्स स्क्वायर एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, एंड लास्टली क्या बचा हमारे पास, हाँ तो इन दोनों का सम हमें दिखा रहा है इक्वल टू 2 है, तो व्हिच मींस ये दोनों कैंसिल हो जाने चाहिए थे, है ना, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म है बस, यहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा है बस, वहाँ एक्स नहीं आया, एक्स नहीं आया था क्या, एक्स था, ये रहा ना, मैंने मिस कर दिया, तो इंटू क्या है एक्स, तो इंटू क्या है यहाँ पे इस पूरे के साथ एक्स, तो नाउ यू कैन सी इफ आई ऐड दीज टू टर्म्स, इफ आई ऐड दिस एंड दिस व्हाट डू आई गेट, ये तो कैंसिल हो गया, एग्जैक्टली सेम है, फाइनल आंसर क्या आ गया 2, so yes, this is the question we left off, kind of like this is the kind of question we left off, I'm not sure शायद, what I was saying, to save some steps, just to save some steps, and it's not just about steps, to save this thing कि जो मैं 2 differentiations इसी के अंदर करनी पड़ी, what you could have done is कि ये देखो, ये कितने steps हुए, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, तो dy by dx क्या है, dy by dx is equals to 2t into dt by dx, now d square y by dx square क्या आएगा, पहले अगर मैं, तो इसको दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कांस्टेंट क्या लेता हूँ, मैं t कांस्टेंट लेता हूँ, t कांस्टेंट लूंगा, ठीक है, 2t कांस्टेंट लिया तो d स्क्वायर t बाय dx स्क्वायर आ गया, ठीक है, प्लस अब मैं dt बाय dx कॉमन लेता हूँ, dt बाय dx कॉमन लूंगा तो 2t की डिफरेंशिएशन 2, ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास dt बाय dx की वैल्यू है ना, ये क्या था, dt बाय dx था इफ यू रिमेंबर, तो मैं यहाँ से d स्क्वायर t बाई dt स्क्वायर भी निकाल सकता, d स्क्वायर t बाई dx स्क्वायर निकाल सकता हूँ, वो क्या आएगा, x टू द पावर 1 माइनस x टू द पावर -1/2 है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर -1/2 है, तो -1/2 आगे आ गया इनटू x टू द पावर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर -3/2, है ना, इनटू x स्क्वायर टू द x स्क्वायर, है ना, इनटू 2x आ जाएगा, तो 2 कट जाएंगे, व्हाट हैपेंड इज कि ये जो 3 स्टेप में स्प्रेड है ना, जो मैंने अलग अलग तरीके सब्स्टिट्यूशन से करा, वो t सब्स्टिट्यूशन करने की वजह से सिर्फ इस स्टेप के बाद तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो इट विल अपीयर क्लीनर, इट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, एंड मतलब शायद हेल्प करे, तो मैं इसलिए कह रहा था ट्राई करके देखना, एनीवे अभी जा सकते